So once again, I, Dr. Parth Rashmikant Bhatt, welcome you in the chapter 2, share capital transactions of subject called Financial Accounting 1 of BCom Semester 1. BCom Semester 1 का दूसरा चैप्टर और उसका तीसरा सेशन, जहां पर हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम. यू मे ऑल्सो राइट, आप लिख भी सकते हो. यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर योर गुड नोट्स, आप अपने अच्छे नोट्स बना सकते हो. तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है डिस्कशन का वो है इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम. प्रीवियसली वी हैव स्टडीड 8 basic journal entries and calls in arrears and calls in advance. Now in today's session, we will start with issue of shares at a premium. First of all, write down first point, issue of shares at a premium. Very first point. When company issues shares at an issue price which is more than face value, then difference between issue price and face value is known as securities premium. When company issues shares at an issue price which is more than face value, then difference between issue price and face value is known as securities premium. Try to understand with the help of example. हम एक example लेते हैं इस चीज को समझने के लिए. Suppose हम जो भी शेयर्स अभी इश्यू कर रहे हैं हमारी कंपनी में, उन शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपीज. फेस वैल्यू એટલે કે મૂળ કિંમત. નાउ वी आर गोइंग टू इश्यू दिस शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 12 रुपीज. 10 रुपए का शेयर हम 12 रुपए में इश्यू कर रहे हैं. तो 10 रुपए से ऊपर यानी कि फेस वैल्यू से ऊपर हम जितना भी पैसा शेयर होल्डर्स से मांग रहे हैं वो पैसा क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं जामीनगिरी प्रीमियम. तो फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम. लेकिन ये कब होगा? जब हमारा इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा हो. જ્યારે આપણી બજાર કિંમત અથવા તો શેર બહાર પાડવાની કિંમત મૂળ કિંમત કરતા વધારે હોય ત્યારે જ એને આપણે સિક્योरिटीज प्रीमियम कहिए छे, तभी हम उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सेकंड पॉइंट, यू मे राइट डाउन सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम is capital profit for the company. Securities premium is capital profit for the company. Hence it will be always shown. Hence it will be always shown under reserves and surplus on liability side of balance sheet. See, always remember one thing, that securities premium is a kind of capital profit. એટલે કે જામીનગીરી પ્રીમિયમ આપણા માટે મૂડી નફો છે, સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट है. सो व्हेनेवर हम जब फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, જ્યારે આપણે વાર્ષિક હિસાબોની વાત કરીએ છીએ, તો in case of final accounts it will be always shown under the head reserves and surplus.
ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં એટલે કે વાર્ષિક હિસાબોમાં એને આપણે રિઝર્વ્સ અને સરપ્લસના હેડિંગની અંદર બતાવીએ છીએ. રિઝર્વ્સ અને સરપ્લસનું શુદ્ધ ગુજરાતી થાય અનામત અને ભંડોળ. અને અનામત અને ભંડોળ એટલે કે રિઝર્વ્સ અને સરપ્લસ કઈ સાઈડ પર હોય બેલેન્સ શીટમાં? તો લાયબિલિટી સાઈડ ઉપર. So it will be always shown under reserves and surplus on liability side of balance sheet. This is second point that you need to remember. And third point, which is very important, write down third point. When no information is available, when no information is available for treatment of a premium, when no information is available for treatment of a premium, then always consider premium at the time of allotment money due. See, normally आपके क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आपको कौन से स्टेज पे काउंट करना है. ठीक है, जैसे आपको बोला गया है कि एप्लीकेशन एलोटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल અરજી મંજૂરી પ્રથમ હપ્તો અને છેલ્લો હપ્તો. So at the time of allotment you need to collect premium. It is given information. આ ઇન્ફોર્મેશન તમને આપેલી છે કે અલોટમેન્ટ વખતે અલોટમેન્ટ કે ટાઈમ પર आपको પ્રીમિયમ गिनना है. So this is given. But sometimes in some questions information for treatment of premium is not available. ક્યારેક એવું થાય કે તમને પ્રીમિયમ ક્યારે લેવું, પ્રીમિયમ હોય ખરું પણ પ્રીમિયમ ક્યારે લેવું એની કોઈ માહિતી ન આપી હોય, તો at that point of time always remember that you have to consider premium at the time of allotment money due. Okay, so whenever you are going to pass your entry number 3 જ્યારે ત્રીજા નંબરની આમનોંધ આપણે લખીએ છીએ એટલે કે allotment money due ની મંજૂરીના નાણાં મળવાપાત્ર થયા એની જ્યારે આમનોંધ લખીએ છીએ આપણે, at that point of time premium, that is securities premium, is to be considered. So all these points are very important, but again the most important thing is journal entry. So after 3 points also write down journal entry. Journal entry means આમનોંધ. Write down entry. Share allotment account debit. To equity share capital account and to securities premium account. See here you may write total amount due with premium. See, you have to debit total amount due with premium. So amount paid towards face value એટલે કે મૂળ કિંમત પેટે જે પણ રૂપિયા ચૂકવવા પાત્ર થતા હોય એ અને એની સાથે પ્રીમિયમ બંને ટોટલ જે છે એ અમાઉન્ટ તમારે ડેબિટ કરવી પડે. ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ amount receivable towards face value. નો મતલબ થાય કે જે પૈસા આપણને મૂળ કિંમત પેટે મળવા પાત્ર હોય એ પૈસા અહીંયા ક્રેડિટ કરવાના. And here amount receivable towards premium. So very simple logic is કે જે પૈસા ફેસ વેલ્યુ માટે મળવાના હોય એ ફેસ વેલ્યુમાં ક્રેડિટ કરો. ઇટ મીન્સ કે ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં ક્રેડિટ કરો અને જે પૈસા પ્રીમિયમ ના હોય એ ઓલવેઝ સિક્યોરિટીઝ પ્રીમિયમમાં આપણે ક્રેડિટ કરવા પડે. સો આઈ રિપીટ, શેર એલોટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ, total amount due with premium. To equity share capital account, that is amount receivable towards face value.
to securities premium account, that is amount receivable towards premium. So this is entry need to be passed at the time of allotment money due. So this is issue of shares at a premium. Now the next point of discussion is issue of shares at a discount. It is totally new point. Issue of shares at a discount, into bracket you may write prohibition. Now what do we mean by prohibition? Prohibition no matlab થાય પ્રતિબંધ. So write down first point. There is only one point in fact. As per provisions of Companies Act 2013, as per provisions of Companies Act 2013, company cannot issue shares at a discount. So it is to be remembered always that according to provisions of Companies Act 2013, no company can issue shares at a discount. So now it is totally removed. It is totally prohibited. કોઈ પણ કંપની પોતાના શેર વટાવથી બહાર પાડી શકે નહીં, એટલે કે ડિસ્કાઉન્ટથી બહાર પાડી શકે નહીં. So this is issue of shares at a discount. Now coming to the most important part of this chapter. Most of students are making mistakes here. मोटा भागना विद्यार्थियों અહીંયા भूल करता હોય છે. काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पर दिक्कत आती है, तो इसको खूब अच्छे से समझिएगा. Forfeiture of shares. Make a new point. This is a totally independent point. Forfeiture of shares, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય શેર જપ્તી. Forfeiture of shares, share japti. See, I am repeating everything in Gujarati. Once I use English, I am always repeating in Gujarati and Hindi, and it is only and only for your reference. ये आपके reference के लिए है, क्योंकि काफी सारे students ऐसे होते हैं जो 12th तक गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, and now they took admission into English medium. So it is only for your reference. Forfeiture of shares. Make a paragraph and write, when shareholders will not make payment, when shareholders will not make payment towards any of stage, in share issue, towards any of stage in share issue, then after allowing specific time period, company will forfeit money, which has been already paid, by shareholders, as well as company will cancel such shares, from share register. This whole process
is known as forfeiture of shares. This whole process is known as forfeiture of shares. अब इस चीज को हम पढ़ने जाएंगे तो हमें कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस चीज को अगर हम एग्जाम्पल से सपोर्ट करेंगे तो हमें ऑलवेज ये चीज समझ में आएगी. तो आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. सपोज हमारी कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए. 4 स्टेज है हमारे पास. एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है. एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के वक्त हम 2 रुपए मंगा रहे हैं. अलॉटमेंट के टाइम हम 3 रुपए मंगवा रहे हैं. फर्स्ट कॉल के टाइम पर हम फिर 3 रुपए मंगवा रहे हैं और फाइनल कॉल के टाइम पर हम 2 रुपए मंगवा रहे हैं. तो 2 + 3 + 3 + 2 यानी कि कुल मिला के हम 10 रुपए मंगा रहे हैं. अब एप्लीकेशन के टाइम पर हमें जो शेयर्स इश्यू करने थे उनका नंबर है 1 लाख शेयर्स, यानी कि 1 लाख शेयर के ऊपर हमें 2 रुपए एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं एंड वी आर ओके विथ इट. बट जब हमने लोगों के पास अलॉटमेंट मांगा तो आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स 95,000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे, 95,000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें अलॉटमेंट के 3 रुपए पे किए. लेकिन 5,000 शेयर्स ऐसे भी थे जिन्होंने हमें बार बार मांगने पर भी 3 रुपए नहीं पे किए. ठीक है, तो 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें 3 रुपए अलॉटमेंट के जो मिलने वाले थे वो नहीं मिले. हम लोगों ने उनको नोटिस दिया कि भाई आप जो ये 5,000 शेयर्स है इसके ऊपर 3 रुपए इसके ऊपर 3 रुपए हमें पे कीजिए. लेकिन ये 5,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए उन लोगों से जब हमने मांगे तो उन लोगों ने हमें ना बोल दिया कि हम लोग ये 3 रुपए 5,000 शेयर्स पे नहीं दे सकते. तो इन दिस केस आफ्टर गिविंग टाइम पीरियड, एक टाइम हमने दिया कि भाई 2 महीने में 3 महीने में आप पे कर दो, उसके बाद भी वो लोग अगर हमें पैसे नहीं पे करते तो इन दैट केस हम उनके शेयर्स फोरफिट करेंगे यानी कि वो 5,000 शेयर्स के ऊपर हमें एप्लीकेशन के जो 2 रुपए मिले हैं पहले उसको हम फोरफिट कर लेंगे और वो 5,000 शेयर्स को हम हमारे शेयर के रजिस्टर में से कैंसिल कर देंगे. यानी कि शेयर्स के रजिस्टर में जिसका नाम 5,000 शेयर्स का था वो नाम हम कैंसिल कर देंगे और वो 5,000 इक्विटी शेयर्स फ्री हो जाएंगे. यानी कि ये 5,000 शेयर्स को हम फिर से री इश्यू भी कर पाएंगे. सो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स અને ગુજરાતીમાં કહેવાય શેર જપ્તી. But here the journal entry is very important. So try to understand the journal entry in very much detailed. Journal entry, write down. सी जब भी हम शेयर्स इश्यू करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन वही शेयर्स हम जब फोरफिट करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक चीज हमेशा याद रखें आप कि जब भी हम फोरफीचर का एंट्री पास करते हैं तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा डेबिट होता है. तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. लेकिन कौन सा अमाउंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर इनटू फोरफिटेड शेयर्स. जितने शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं उसके ऊपर हमने जितने भी रुपए अभी कॉल किए हैं, यानी कि अभी तक हमने जितने भी रुपए मंगवाए हैं उतने ही रुपए हम यहाँ पर डेबिट कर पाएंगे, उतने ही पैसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे. यानी कि अभी तक हमने खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगवाया है, यानी कि 2 रुपए और 3 रुपए मंगवाए हैं, तो यहां पर हम 5 रुपए डेबिट कर पाएंगे. हमने अभी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मंगवाया है तो उसको हम यहां पर
डेबिट नहीं कर पाएंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट एट द टाइम ऑफ forfeiture ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ called up amount per share into forfeited shares. Then securities premium account debit. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कब डेबिट करेंगे हम? जब हमारे शेयर होल्डर्स ने फेस वैल्यू के पैसे तो हमें नहीं दिए, लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम जब हमने मांगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी उसने पे नहीं किया. तो जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आउटस्टैंडिंग होगा, जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर होल्डर्स ने नहीं पे किया होगा, तब ही हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट. अब शेयर फोरफीचर का अकाउंट हम हमेशा यहां पर क्रेडिट करेंगे, लेकिन कौन से अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? जितना अमाउंट ऑलरेडी हमें शेयर होल्डर्स के पास से रिसीव हो गया है, जो अमाउंट शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पे कर दिया है, जो अमाउंट हमने यानी कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पास से रिसीव किया है, वही अमाउंट हम फोरफिट कर सकते हैं क्योंकि वही हमारे पास है. तो टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, और उसके बाद आता है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. जिस किसी भी स्टेज से शेयर होल्डर्स ने पैसे देने बंद कर दिए, वो सारे स्टेज यहां पर हमें क्रेडिट करने पड़ेंगे. यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल. उसके बाजू में हमने लिखा है ब्रैकेट में अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स. अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट से पैसे देना बंद कर दिया तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हम क्रेडिट करेंगे. अगर उसने फर्स्ट कॉल से पैसा देना बंद किया तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल हम क्रेडिट करेंगे. और अगर उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए तो हम खाली फाइनल कॉल यहाँ पर क्रेडिट करेंगे. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम लोग अपनी एंट्री करेंगे. सो जर्नल एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, securities premium account debit, to share forfeiture account, to share allotment account, to share first call account, and to share final call account. So this is something which is related with forfeiture of shares. अब हमने शेयर फोरफिट तो कर लिए, यानी कि शेयर फोरफिट करने के बाद हमने शेयर्स को कैंसिल किया, तो अब वो शेयर्स फ्री हो गए. फ्री हो गए उसका मतलब क्या होता है कि अब वो शेयर्स हम फिर से री इश्यू कर सकते हैं. तो उसका भी प्रोसेस हम जान लेते हैं. मेक अ न्यू हेडिंग, री इश्यू ऑफ forfeited shares. Write down in the next line first point. After forfeiting shares from shareholders, after forfeiting shares from shareholders, company will reissue, company will reissue such shares to general public, to general public at face value or at price as may be decided. यानी कि एक बार जब हम शेयर्स को फोरफिट करते हैं, यानी कि शेयर्स फ्री हो जाते हैं, उसके बाद हम वही शेयर्स वापस जनरल पब्लिक को री इश्यू कर सकते हैं. या तो हम उसको फेस वैल्यू से री इश्यू करेंगे, या तो फिर जो भी प्राइस जनरल पब्लिक और कंपनी के बीच में डिसाइड होता है, वो प्राइस पे हम शेयर्स को री इश्यू कर सकते हैं. अब उसका भी जर्नल एंट्री देख लेते हैं एक बार. सी whenever we are going to reissue, जब भी हम शेयर्स को री इश्यू करते हैं तो हमें पैसे रिसीव होते हैं. अब जब पैसे रिसीव होते हैं, कंपनी जब भी पैसे रिसीव करती है
तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, आवे ते उधार. सो बैंक अकाउंट डेबिट इनटू ब्रैकेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, जो भी अमाउंट हमें शेयर होल्डर्स के पास से मिला है, ये नए शेयर होल्डर्स हैं हमारे, उस अमाउंट को हम बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे. देन शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट. अब पुराना माल हम जब भी वापस बेचते हैं, यानी कि एक बार बेचा और फिर से उसको बेचते हैं, तो उसमें हमेशा हमें लॉस होता है. तो जब भी री इश्यू के टाइम पर कोई भी लॉस होता है, वो लॉस को हम शेयर फोरफीचर अकाउंट में डेबिट करेंगे. तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट इनटू ब्रैकेट लॉस एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर्स. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम कौन सी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, तो कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर इनटू शेयर्स. जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हमने री इश्यू किए वो, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर. अभी तक हमने जितने रुपए कॉल किए हैं, मंगवाए हैं, उस रुपए से हम इसको क्रेडिट करेंगे. एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस एट री इश्यू. अगर कोई भी अमाउंट हमें एडवांस में रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ री इश्यू, तो वो भी यहां पर हम क्रेडिट करेंगे. So I repeat, bank account debit, share forfeiture account debit, to equity share capital account, and to calls in advance account. This is entry for reissue. And finally, at the end of the process, ये process पूरा complete हो जाता है. उसके बाद last point, balance of share forfeiture will be transferred to capital reserve in proportionate manner. See, पहले हमने शेयर फोरफिट किए, उसके बाद वही शेयर्स हमने फिर से री इश्यू किए. अब ये दोनों चीज खत्म होने के बाद फाइनली जो भी हमारे पास शेयर फोरफीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहता है, उस क्रेडिट बैलेंस को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं प्रोपोर्शनेट मैनर में. प्रोपोर्शनेट मैनर मींस जितना शेयर फोरफीचर हमने यूज किया है उसको हम माइनस करेंगे, और जितना भी बैलेंस बचता है हमारे पास शेयर फोरफीचर का, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. तो उसका क्या एंट्री होगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ये चीज जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिनेंगे तब ज्यादा क्लियर होगी, बिकॉज in this particular topic, in this particular aspect, we have two different situation. हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशन है, और वो दोनों सिचुएशन जब हमारे सामने आएगी तब इसका सॉल्यूशन हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे. So in today's session we have studied in total 5 different things. सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, उसके बाद फोरफीचर ऑफ शेयर्स, then reissue of forfeited shares, and then finally balance of share forfeiture transferred to capital reserve account. Thank you very much. I hope कि आपको ये सब चीज समझ में आ रही होगी. Thank you.